Hello, good morning to all of you. Good morning. सभी एक साथ Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. एक एक करके नहीं, सभी एक साथ. Good morning all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. अभी भी सब अलग अलग. मैम वो नेट का प्रॉब्लम है. सुबह सुबह तो इतना एनर्जेटिक होना चाहिए बेटा. It is only our second lecture. चलिए. So, are you ready for tomorrow test? सभी तैयार हैं कल टेस्ट के लिए? मैम किसके लिए? कल टेस्ट बोला था ना मैंने वेडनेसडे को एक क्लास टेस्ट रखे हैं. वेडनेसडे और फ्राइडे जब आप चाहें. Friday. फ्राइडे कंफर्म. बताइए हाँ. बाकी जल्दी से जो लोग फ्राइडे इंटरेस्टेड हैं रेज योर हैंड. ओनली वन अभिनव. प्रीति गुड. अच्छा चलिए फ्राइडे में सभी इंटरेस्टेड है ऑलमोस्ट. जो फ्राइडे में इंटरेस्टेड नहीं है आज कल इंटरेस्टेड है सिर्फ वो हैंड रेज करें. बाकी सब प्लीज लोअर योर हैंड. कल के लिए कोई तैयार नहीं है. गुड. मैम सिलेबस क्या है? थ्री फर्स्ट 2 यूनिट्स. मैम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट ना. फर्स्ट 2 यूनिट्स. फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट. चलिए अभी हम एक छोटी सी एक एक्सरसाइज है उसको पहले करते हैं एंड आफ्टर दैट आप अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे. ठीक है. और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है आई विल एक्सप्लेन सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट क्लॉजेस टू यू. कितने लोगों को आपको सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट क्लॉजेस मालूम है? हाउ मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद दीज क्लॉजेस? सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज. Raise your hand if you are familiar with these clauses. नहीं है कोई बात नहीं. एक छोटी सी एक्सरसाइज है. सबसे पहले हमने जब ये शुरू किया था we started with parts of speech. And how many parts of speech are there? 8. ठीक है. Do you remember that? 8 parts of speech. Yes, ma'am. Good. Which 8 parts of speech? Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. I am giving you some sentences. You have to identify which part of speech is there in that sentence. और वो आपको पूरे सेंटेंस में हर एक वर्ड का नहीं, for only one specific word. ठीक है. किसी एक स्पेसिफिक वर्ड का आपको बताना है. इसके साथ ये प्रॉब्लम होगा. चलिए तो शायद चल जाएगा. चल जाए. गुड. कोई नहीं दूसरा मिलाएंगे. मैं आपको ऐसे बताती हूँ फिर सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस इज. आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए. अगर पेन नोटबुक आपका तैयार नहीं है जल्दी से अरेंज कीजिए. अरेंज योर पेन एंड नोटबुक. आर यू रेडी? रेडी?
First sentence is our blessings come from above. Our blessings come from above. Have you noted down? Have you noted down the sentence? Yes, ma'am. Good. Second sentence is a voice from above. A voice from above shouted a welcome. A voice from above shouted a welcome. Third is the sun rose above the horizon. The sun rose above the horizon. And fourth sentence is the teacher asked the students to analyze the above sentence. I repeat, the teacher asked the students to analyze the above sentence. First of all, tell me, which is the word that is there in all four sentences? Above. And you have to tell me what part of speech above is there in these four sentences. Because a word can be used as different parts of speech in different contexts, in different sentences. जल्दी से देखिए इसको. You have 1 minute. Yes. First sentence, our blessings come from above. What Adverb. No. In this sentence, above is noun. It is noun. अब noun क्यों है? Can you tell me why it is a noun here? Why it is a noun? मैम प्लेस रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? No, because यहाँ पर आपने above किसके लिए यूज किया? Our blessings come from above. Above यहाँ पे छत के लिए नहीं है, ठीक है, heaven के लिए है. यहाँ पर हम above उसको यूज कर रहे हैं heaven की सेंस में. And heaven is a noun. इसको हम above को यूज कर रहे हैं heaven और God के सेंस में. That's why it is a noun in this sentence. Our blessings come from heaven or come from above. Yes. Second sentence, a voice from above shouted a welcome. A voice from above shouted a welcome. आप लोग प्लीज अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए. Yes, Aditya. Yes, ma'am.
What part of speech is there? above के लिए कौन सी part of speech है? जल्दी से बेटा. Anyone else? मैम मैंने थोड़ा सा लेट एंटर किया था, मेरे को नहीं पता क्या चल रहा है. कोई बात नहीं. अभिनव. आशिमा. मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो, मैं बता दूंगा. बेटा सेंटेंस है ए वॉइस फ्रॉम अबव शाउटेड अ वेलकम. इसमें वर्ड है अबव. अबव इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अबव इन दिस सेंटेंस? वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. उनमें से ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? आपको सिर्फ ये बताना है. आस्था. मैम ये प्रेपोजिशन होगा क्या? नो, इट इज एडवर्ब हियर बेटा. ए वॉइस फ्रॉम अबव. बट जनरली एडवर्ब में पीछे एलवाई नहीं लगता. किसमें? जरूरी नहीं है, सब में नहीं लगता है. ठीक है. ए वॉइस फ्रॉम अबव शाउटेड अ वेलकम. प्रिपोजिशन ये कहाँ पर है मैं आपको बताती हूँ. इन थर्ड सेंटेंस इट इज अ प्रिपोजिशन. कहाँ से? होराइजन के ऊपर से. द सन रोज अबव द होराइजन. यहाँ पर ये प्रिपोजिशन है. एंड इन फोर्थ सेंटेंस, ये तो आप इजीली बता सकते हैं. फोर्थ सेंटेंस Adjective. एग्जैक्टली, वेरी गुड. इट इज एडजेक्टिव. इन फोर्थ सेंटेंस इट इज एडजेक्टिव. मैम ये सेंटेंसेस है कहाँ पर? ये सेंटेंसेस बेटा मैंने डिक्टेट किए थे, अभी बच्चों ने नोट डाउन किए. आप लेट हो गए थे इसलिए आप नहीं कर पाए होंगे. डोंट वरी, ये शीट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, तो बाद में भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसको देख सकते हो. ठीक है. क्योंकि मुझे भी बस क्लास के लिए आते हुए मैंने फटाफट निकाली थी अपनी कोर्स फाइल से, तो इसलिए मैं इसको भी अपलोड नहीं कर पाई हूँ. दूसरा है second set. Note down the sentences. Sita arrived soon after. Sita arrived soon after. बताइए. Which part of speech is after here? Adverb. Good. Adverb. और किसको क्वालिफाई करता है ये? It is describing. It is describing soon. ठीक है. So it is adverb. Next is the police are after the thief. The police are after the thief. Harshad, Harsh, the police are after the thief. In this sentence, after is used as Preposition है क्या मैम? yes, it is preposition. Good. Well done. It is preposition. The police are after the thief. Third is she arrived after her friend had left. She arrived after her friend had left.
Astha, Yes, ma'am. yes. Which part of speech? Conjunction. It is conjunction. Good. She arrived after her friend had left. Conjunction. And next is his plan is to move to his village in his afterlife. His plan is to move to his village in his afterlife. हम आफ्टर लाइफ नाउन हो गया ना. आफ्टर क्या है इसमें? लाइफ इज नाउन. कौन सी लाइफ में? आफ्टर लाइफ. क्या हुआ ये? It is describing life, noun. So it is an adjective here. ठीक है? Yes ma'am, yes ma'am. It is an adjective because it is describing life. कौन सी life? After life. चलिए बस एक और इसके बाद एक और करते हैं एंड उसके बाद मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी जिनको आप बाद में प्रैक्टिस के लिए आप खुद देखेंगे सेंटेंसेस एंड आप चाहें तो उनको शेयर कर दीजिएगा वर्ड उसमें क्लास ग्रुप में जो आपका HEP वाला ग्रुप बना हुआ है या आप पर्सनली उसको शेयर कर दीजिएगा या गूगल क्लासरूम पे आप किसी भी असाइनमेंट के साथ उसको डाल देना वहाँ में चेक करके या फिर हमें नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है? एज यू विश. एक और कर लेते हैं बस. Freedom is our birthright. First sentence is freedom is our birthright. Second is we should do what is right thing. We should do what is the right thing. Third sentence, the coin slipped right to the bottom of the icy slope. The coin slipped right to the bottom of the icy slope. And fourth sentence is the pilot righted the aeroplane after the big bird had passed. The pilot righted the aeroplane after the big bird had passed. Which part of speech? Right is in first sentence. RIGST. Freedom is our birthright. Yes, God Sundar. Priyanshu, Priyansh. I think Priyanshu is there. Priyansh Bharadwaj. Yes ma'am. Yes, Priyansh. बताइए बेटा. Right. Ma'am. Freedom is our birthright. Which part of speech is birth? Sorry, right. हम प्रधान. नहीं पता है. ओके. अनुराग का तो एडजेक्टिव हो सकता है. नो बेटा, इन दिस सेंटेंस इट इज नाउन. फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट. फ्रीडम हमारा राइट है, अधिकार. कौन सा राइट? बर्थ यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव आप इसको यूज कर सकते हैं या इसको कंबाइंड नाउन भी. हम बर्थ का ही तो बताना था. राइट सॉरी, राइट का बताना है ना. अच्छा ओके सॉरी. राइट. यस. सेकंड सेंटेंस, वी शुड डू व्हाट इज द राइट थिंग. इधर मैम राइट एडजेक्टिव होगा. वेरी गुड. इन दिस सेंटेंस इट इज एडजेक्टिव. थर्ड, the coin slipped right to the bottom of the icy slope.
Adverb. Fantastic. Adverb. And fourth, Verb. very good. आईसी एडजेक्टिव होगा ना इसमें? आईसी स्लोप वो, हाँ आईसी एडजेक्टिव है एंड स्लोप इज नाउन. आईसी स्लोप, आईसी इज डिस्क्राइबिंग नाउन स्लोप, and right is adverb, that is describing the position. ठीक है. And in fourth sentence write it is verb. Very good. Now you should note down some words जिनको आपको अलग अलग sentences में use करना है as different parts of speech. I repeat, I am giving you some words. You have to use them in different sentences as different parts of speech. Note down the words. First is some, S-O-M-E. Some. Second is water, W-A-T-E-R. Third, cold. Fourth, near, N-E-A-R. थर्ड रिपीट करना. Cold, cold, C-O-L-D. Cold. Fourth, near. Fifth, all, A-double-L. And sixth word is bridge, B-R-I-D-G-E. B-R-I-D-G-E. हम इसको कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज कर सकते हैं. हाँ, आप इनको अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह आपको इनको अलग अलग सेंटेंसेस में यूज करते हैं. ठीक है. जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर वर्ड सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हो सकते हैं. कुछ 2 में यूज हो सकते हैं, कुछ 3 में हो सकते हैं, कुछ 4 में भी हो सकते हैं. ठीक है. सो इट डिपेंड्स. तो जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना आपको उनको अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज करने हैं. ठीक है. Okay, so next we can do 2 things. We can discuss prepositions or we can discuss clauses. What would you like to do? हम क्लॉजेस तो हो गए थे ना. नहीं, सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट क्लॉजेस वो आपने सिर्फ कंडीशनल क्लॉज किया है. मैं उसमें आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ. क्लॉज क्या है वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. क्लॉज इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कंबाइंड सेंटेंस दैट कंटेन्स अ वर्ब, एंड जनरली इन ए कॉम्प्लेक्स और इन कंपाउंड सेंटेंस देयर आर मिनिमम 2 क्लॉजेस. अगर एक ही क्लॉज है फिर हम उसको क्लॉज नहीं कहते, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस. बट व्हेन 2 क्लॉजेस आर कंबाइंड, it is, or 2 sentences are combined, they are called clauses, and combined it is called a sentence. अब ये sentences 2 तरीके के होते हैं, coordinate, compound sentence and complex. In compound sentences we have 2 clauses. One is coordinate, second is subordinate. मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगी. One is coordinate, second is principal clause, and in complex sentences one is subordinate and second is principal. यानी principal दोनों में होगा और एक clause subordinate होगा, एक coordinate होगा. coordinate compound, subordinate complex. तो जो आपने conditional clauses किए हैं, conditional clauses are subordinate clauses that are there in complex sentences. और ये सिर्फ एक पार्ट है, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉजेस अगर आप इनको पूरा डिटेल में देखें, दे आर ऑफ 9 टाइप्स. अलग अलग तरीके के होते हैं, 9 टाइप्स के होते हैं, और 9 में से सिर्फ ये एक काइंड है कंडीशनल क्लॉजेस. चलिए क्लॉजेस को फिर हम बाद में कर सकते हैं. अभी आप प्रीपोजिशंस का थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि प्रीपोजिशंस आपको टेस्ट में भी आने वाले हैं. ठीक है. तो सबसे पहले व्हाट इज द प्रीपोजिशन?
A preposition is a word or a set of words, जिसको आप phrasal preposition भी कहते हैं या phrase preposition भी कहते हैं, जिसमें आप दो तीन वर्ड से मिलकर एक preposition बनाते हैं. So a preposition is a word or a set of words that indicates a location or position or relation between a noun or a pronoun or other parts of speech. यानी sentences की different parts of speech के बीच में कोई relation या किसी चीज़ की, किसी noun की, pronoun की कोई location या situation, वो जो describe करता है या indicate करता है, that word is called preposition. So first of all, we'll go through the rules and then different prepositions. So first rule says preposition must have an object. जब भी आप preposition use करेंगे, it is always with an object. अगर object नहीं है, it is not a preposition. क्योंकि preposition को बताने के लिए वो किसका relation बताएगा? किसी object का ही किसी दूसरे part of speech के साथ बता सकता है. ठीक है? I am giving you two sentences. उनको आप नोट कर लीजिए एंड यू कैन इजीली सी देम, क्योंकि मेरे पास अभी वो नोट पैड नहीं है और मार्कर भी काम नहीं कर रही है. He is in the office. He is in the office. And second sentence is you may come in. You may come in. अब इन दोनों सेंटेंसेस में अगर आप देखें, फर्स्ट सेंटेंस में इनके बाद एक ऑब्जेक्ट है, दैट इज ऑफिस. ही इज इन द ऑफिस. दिस इन इज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट ही एंड ऑब्जेक्ट किचन, सॉरी ऑफिस. तो इन दोनों के बीच में वो एक रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन. But in second sentence, you may come in, there is no object. यहाँ पर कोई भी object इनके बाद नहीं है. यहाँ पर इन क्या है? इन is an adverb. यहाँ पर इन सिर्फ adverb है, क्योंकि उसका कोई object नहीं है जिसके साथ ही relationship दिखाए. ये कब के साथ बनाकर आपने इसको क्या कैसे यूज किया है? As an adverb. Next sentence is there was a car before me. मेरे से आगे या मेरे से पहले एक कार थी. There was a car before me. Again, before is a preposition because it is having an object after it, that is me. I am giving you another sentence. He has never seen it before. और we have never seen it before. हमने ये इससे पहले कभी नहीं देखा. In this sentence, before is a verb because it doesn't have any object. So it is necessary that a preposition must have an object. बहुत जरूरी है. So first rule is preposition is always with an object. Second is it is always used before that object. बहुत कम केसेस में ये ऑब्जेक्ट के बाद यूज होते हैं. It is generally used before that object. हाँ, कुछ केसेस में आप बाद में भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, where are you coming from? Where are you coming from? उस केस में हम इसको लास्ट में यूज करते हैं. अदरवाइज ही इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल, ही इज कमिंग फ्रॉम हिज ऑफिस. ठीक है, इट इज यूज बिफोर द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज preposition the pronoun following the preposition should be in objective form.
आप जब भी प्रिपोजिशन यूज करेंगे उसके बाद अगर आप प्रोनाउन यूज करते हैं, इट शुड बी इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, नॉट इन सब्जेक्टिव. फॉर एग्जांपल, आप प्रिपोजिशन के बाद आई यूज नहीं करेंगे, इट शुड बी मी. इट शुड नॉट बी वी, इट शुड बी अस. इट शुड नॉट बी he, it should be him. So it is always used in objective case. So if pronoun is followed, pronoun is there after a preposition, or a preposition is followed by some preposition, this pronoun should be in objective case only. So these are some simple रूल्स, जो बेसिक रूल्स हैं. अब आप आ जाइए प्रिपोजिशंस पर. फर्स्ट प्रिपोजिशन इज इन. ये आप कर चुके हैं वैसे थोड़ा सा, पर फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं. इन एंड एट. व्हेन इन इज यूज्ड एज अ प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड एट? और ये बहुत माइनर सा डिफरेंस है, और एग्जाम में 2-3 बार इसके रिलेटेड सेंटेंसेस आ चुके हैं. When in and at are used as preposition of place, in is for large towns, in is used for countries or for large areas, and at is used for small towns, villages, colonies. यानी जो छोटी जगह है उसके लिए आप at यूज करते हैं. इन आप बड़ी जगह के लिए यूज करते हैं. कंट्री के लिए आप इन यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स इन इंडिया, ही लिव्स इन दिल्ली. लेकिन अगर आप दिल्ली में कोई स्पेसिफिक एरिया बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स एट मालवीय नगर इन दिल्ली. अगर आप किसी विलेज को रेफर करते हैं उसमें भी एट. ठीक है. सो इन एंड एट में ये डिफरेंस है. इन इज फॉर larger towns, countries, big cities, and at is used for small towns, villages, small colonies, etc. In and at, when used as preposition of place, again, in and at are used to indicate rest position, whereas to and into are used to indicate motion. I repeat, in and at are used to indicate rest position, and to and into are used to indicate motion. For example, he is at the top of the class. He is at the top of his office. The storeroom is at the top of the building. Rest position. Okay. He is running to the top of the office. He is running to the top of the building. Motion. So, to is used to indicate motion. In the same way, he is in the room. He is going into the room. He jumped into the river. There is a whale in the river. That is already there. लेकिन अगर आप वहाँ पर motion दिखाते हैं, the whale jumped into the river. So in jumping there is motion, there is movement. So into. Next is on. On again, on is used to indicate rest position, and upon is used to indicate motion. Okay, Chaitanya. Riti. Yes, ma'am. Riti, आप चेयर पर Yes, बैठे ma'am. हुए हैं.
आप चेयर पर बैठ गए, ठीक है, वो आया और चेयर पर बैठ गया, हाउ विल यू ट्रांसलेट दिस? Sorry, ma'am, can you repeat? वह आया और चेयर पर बैठ गया, हाउ विल यू ट्रांसलेट? Came and sat. Vinay came and sat on the chair. He came and sat on a chair, ठीक है, Yes, ma'am. क्योंकि आप बाद में बता रहे हैं एंड एट दैट टाइम देयर इज नो मोशन, बट द कैट इज jumping upon the table. So in jumping there is movement, so it will take upon. The cat is jumping upon the table. Okay. ठीक है, next is Yes, ma'am. I am giving you a sentence, आपको बताना है इसमें whether it is right or wrong. He slept till 8 o'clock. He slept till 8 o'clock. Slept until 8 o'clock. No, he slept till 8 o'clock, ठीक है, इट इज राइट कि वो 8 बजे तक सोया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टाइम के कॉन्टेक्स्ट में आपने टिल का यूज किया है, लेकिन टाइम उसकी उसी को अगर आप दूसरा सेंटेंस आप लेते हैं, ही वॉक्ड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ही वॉक्ड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट, इज इट राइट? आदित्य, इज इट राइट? ही वॉक्ड गलत तो नहीं लगा? नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने फर्स्ट सेंटेंस में टिल को आपने यूज किया था टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, और यहाँ पर आपको जगह के कॉन्टेक्स्ट में बताना है, जबकि हमारे पास हिंदी में वर्ड एक ही है, तक, कि वो 8 बजे तक सोया और वो स्ट्रीट के एंड तक गया। यही हम इंडियनिज्म में भी करते हैं, व्हेन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम हिंदी में करते, इसमें इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश करते हैं, इंडियनिज्म में वी कम अक्रॉस दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. So it should be he walked to the end of the street. He walked to the end of the street. All of you please rejoin. Okay. Next, with and by. With and by, what's the difference? With is used for instruments and by is used for agent, means person. He killed a bird with an arrow. He cut the wood into pieces with an axe. So it is instrument, axe and arrow, these are instruments, so we use will. But if person is there, in that case, it is we use by. He was stabbed by a mad person. He was stabbed by a mad person. So with and by. Since and for आपको मालूम ही है, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं टेंसेस में. Since is used for a point of time and for is used for duration of or period of time. Next we have
beside and besides. Beside and besides. Beside is used for by the side, and besides is used for in addition to. Any one example of beside as by the side of? Any one of you? One example of मैम मैं अभी एंटर किया मैंने, बता दो एक बार क्या बोल रहा हूँ. beside. DESIDE. beside को यूज करते हुए एक सेंटेंस बनाओ कोई भी. I sat beside him during the exam. So beside, by the side, बराबर में. So I sat beside him during the exam. And besides, besides, DESIDES. Harshit, Besides a sandwich, I also had a milkshake for breakfast. good. Because besides is used for in addition to. Okay. He bought some vegetables besides some fruits. He bought some books besides some notebooks. So in addition to, वहाँ पर हम एस लगा देते हैं. तो सिर्फ एक एस के लगने से इतना फर्क आ जाता है सेंटेंस में, उसका मीनिंग ही बिल्कुल चेंज हो जाता है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज इन एंड विद इन. ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, इन एंड विद इन. When we use within, we indicate before a period of time, यानी जो उसका एंड है उससे पहले. ठीक है. तो within का मतलब है जो एंड पॉइंट है उससे पहले पहले. एंड इन indicates the end of the time, end of the period. For example, you should come back in an hour. It means एक घंटा खत्म होने पर तुम्हें वापस आ जाना है. You should come back in an hour or in 1 hour. एक घंटे में वापस आना है, यानी at the end of 1 hour you must come back. You have to come back within 1 hour, यानी एक घंटा खत्म होने से पहले पहले आपको वापस आ जाना है. So this is the difference between in and within. Within 1 hour, in 1 hour. Okay. I hope that's all for today, क्योंकि टाइम भी हो गया आपकी क्लास का. Let me take the attendance. आदित्य. दोबारा बता दो. Present ma'am. Yes, श्रुति बोलो. एक बार विदिन दोबारा बता दो. Within before the end of the period. For example, you must come back within 1 hour. यानी एक घंटा खत्म होने से पहले पहले आपको वापस आ जाना है. आप 5 मिनट पहले आए, 10 मिनट पहले आए, ठीक है, बट बिफोर 1 hour completes you have to come back. लेकिन अगर हम कहते हैं in 1 hour, it means at the end of time, यानी you must come back in 1 hour. एक घंटा कंप्लीट होने के बाद ही आपको आना है. तो जैसे ही खत्म हो जाए तब आ सकते हैं, उसके बाद आ सकते हैं, यानी अप्रोक्स आपने उसको टाइम बता दिया. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 hour you must come back. But within means within that period, not beyond that, not after that. Okay, आदित्य हो गया आपको बेटा, अटेंडेंस आपकी तो हुई है. आशिमा. अभिनव. प्रेजेंट मैम. आदित्य क्या हुआ? अभिनव आज आंसर देने के लिए आप एक बार भी नहीं आगे आए हैं. आदित्य रावत. Yes, ma'am. आकांक्षा. Aditya Rawat, you always join in second session. Yes, ma'am. आज आपने अभी उसमें सेकंड सेशन में तो ज्वाइन किया, फर्स्ट सेशन में तो आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा था बेटा. मैम नहीं, मैं था फर्स्ट से.
फर्स्ट में थी ना, आपका नाम फिर नीचे रहा होगा बेटा, कोई बात नहीं, हो सकता है नीचे रहा हो। Yes, ma'am. ठीक है, कोई नहीं। आकांक्षा, अनुराग, अनुराग present है। ओके बेटा। अनुष्का, प्रेजेंट मैम। आरुषि, प्रेजेंट मैम। आर्यन, आस्था, आयुष, चैतन्य, Present, ma'am. चंचल, धूपम, प्रेजेंट मैम। Hello. ज्योति। प्रेजेंट मैम। मैम अनुराग प्रेजेंट है। हाँ बेटा, हो गया है। Hello. विद्या, हो गया बेटा, हो गया है। मैम धृति इज प्रेजेंट। लगा दी। बहुत सुंदर। प्रेजेंट मैम अनुराग। हर्ष गुप्ता, अनुराग का लगा दिया बेटा। हर्ष गुप्ता प्रेजेंट है। हर्षित चौहान, Present, ma'am. हर्षित गुप्ता, हर्षित कुमार, प्रेजेंट मैम। जय, प्रेजेंट मैम। कबीर मित्तल, कार्तिक गुप्ता, Present मैम। कार्तिक गुप्ता भी, कार्तिक नेगी, प्रेजेंट मैम। कुलभूषण, कुलदीप, मनीष, मान्या, मुदित, प्रेजेंट मैम। मुस्कान, प्रेजेंट मैम। नमित, निहारिका, प्रेजेंट मैम। निकुंज, नितिन, नितिन प्रेजेंट मैम। पंकज, प्राची, प्रियांश, प्रेजेंट। प्रियांशु, रजत, राजीव, प्रेजेंट मैम। ऋषि, प्रेजेंट मैम। साहिल, सना, शिव, मैम प्रेजेंट। शिवम, शोएब, प्रेजेंट मैम। सिद्धांत, स्नेहा, सोनिका, दक्ष, Present, ma'am. तरुण, योगेश, जीशान। ओके, अनुराग, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। कल आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम है तो हम कल शुरुआत की आपकी प्रॉब्लम से करेंगे। किसी भी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा मुझे, क्योंकि आपको फिर फ्राइडे टेस्ट के लिए भी आपको तैयारी करनी है। नाउन, प्रोनाउन, किसी भी क्लॉजेस, सेंटेंसेस, टेंसेस, वर्ब्स एंड मॉडल्स, किसी भी टॉपिक या क्वेश्चन टैग्स, इंडियनिज्म, जो भी जितने भी टॉपिक्स आप लोग कर चुके हैं उसमें से सभी में से आपका एक टेस्ट पेपर तैयार होगा, ठीक है। एंड इट विल बी, जो उसका पैटर्न है दैट विल बी एज पर द मिड टर्म क्वेश्चन पेपर, ठीक है। कुछ मतलब पूरा तो नहीं, बट काफ़ी हद तक उसी के तरीके से या उसी के पैटर्न पर होगा वो। आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखिए। इसके मैक्सिमम मार्क्स विल बी 30, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। कोई भी आपको प्रॉब्लम अगर लगती है तो किसी भी टॉपिक में यू कैन आस्क मी टुमारो, वी कैन टेक योर प्रॉब्लम्स एंड डिस्कस देम, एंड ऑन फ्राइडे
Go ahead with your test. All the best. See you tomorrow. Till then, stay safe and take care of yourself. Record.